Hey, hi. So today we are going to talk about miscellaneous relations functions. We are continuing our class 11 syllabus. So let's dive into the miscellaneous examples first. So very first question is this question. We are going to do examples and then we are going to do the 12 question of the miscellaneous exercise. There's very good questions in there. So let R be the set of real numbers. We already know what is R. So this is called, as you know, domain and this is called codomain, right? So there is something R and R and there is a function fx एक function है जो कैसे defined है कि x plus 10. Now here you can also say that fx is y. Now you know how to plot it. It is asking us to plot the sketch of this function, right? So if you want to plot, you can put x equal to 0. If you put x equal to 0, you get y 10. If you put y is equal to 0, you get x is 10, right? If you put y is equal to 0, you get x is minus 10. My bad. So minus 10. Now if you plot it, this point is what? Where x is 0 and y is 10. X is 0 and y is 10 somewhere over here. And if y is 0 and x is minus 10, so negative x-axis, and you need 2 points only. So now you join them up, and this is the graph of my function fx equal to x plus 10. Now, what we are trying to do is over here is this is something called linear function, a straight line equation. You will study straight lines also in class 11th. So this is something called linear function. Now, when I say that what is this m over here, this m over here is called slope. Like this slope is called the m. And this is called the intercept. For example, here the y-intercept, this y-intercept is 10. The x-intercept over here is 10. Okay, this is called the intercept. So when we will study about straight lines, so we'll get more in detail what we are talking about. However, this m and c are constants. Okay, so these are constants. Let's move on to more stuff. What is that? Next example. Okay, so in class 12th, there is another chapter, right? Functions related beta. So in that chapter, you have something called reflexive, symmetric, transitive, right? Equivalence relation, all that. But right now, we are going not to talk about that. We are going to just simply understand that what is this question is. लेकिन लिया वहीं से क्या है ये क्वेश्चन. ओके, so देखते हैं क्या क्वेश्चन है. कहता है कि आर बी अ रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए से बी, ए कॉमा बी. दीज आर द व्हाट, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, राइट? हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं हमारा जो रिलेशन होता है. और ए और बी जो हमारा क्यू से है, राइट? क्यू इज व्हाट, Q is what over here? If you'll see, Q is our rational number, right? Now, quotient, Q stands for quotient, right? And A minus B is something integers. Show that A comma A belongs to that relation. कि A comma A भी इस रिलेशन में होगा, हमें ये शो करना है. दूसरा पार्ट, अगर A comma B बिलोंग कर रहा है, मतलब A रिलेटेड है B से, तो B रिलेटेड होगा A से, हमें ये भी शो करना है प्यारे बच्चे. ठीक है, चलो तो शो करते हैं कैसे होगा. सबसे पहला पार्ट शो करने की कोशिश करते हैं. अगर मैं ए रिलेटेड टू ए बोल रहा हूं, राइट, ये अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं फॉर ऑल, ये वाला शो करना है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर मैं ए माइनस ए लूं, मतलब ये कब रिलेशन कब हो रहा है, जब ए माइनस बी करें और वो इंटीजर में बिलोंग करे. तो अगर मैं ए माइनस ए लेता हूँ, जीरो होता है. जीरो तो बिलोंग करता है इंटीजर में. दैट मीन्स दैट ए कॉमा ए इज अ रिलेशन. ओके, वो इसमें आर डिफाइंड है इस तरीके से. ए इज रिलेटेड टू ए हम कह सकते हैं. ठीक है, ए रिलेटेड टू ए हम कह सकते हैं. सेकंड करते हैं. ठीक है, सेकंड, ए कॉमा बी, अगर ए रिलेटेड है बी से, अगर ए बी से रिलेटेड, मतलब ऐसा कुछ है, मान लो ये है, मतलब ये इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी जरूर इंटीजर रहा होगा. तो अगर ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है तो बेटा ये बताओ, अगर मैं इसमें नेगेटिव ले लूं, नेगेटिव साइन, अगर मान लो टू बिलोंग करता है जेड में, तो माइनस टू भी बिलोंग करेगा जेड में, है ना? तो अगर मैं मान लो नेगेटिव साइन चढ़ा देता हूँ उसके ऊपर, नेगेटिव साइन ऐसे, तो मुझे बताओ क्या आएगा उससे. क्या ये भी बिलोंग करेगा जेड में? बिल्कुल करेगा. और इससे आएगा क्या हमारे पास, इससे आएगा बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी और माइनस ए. क्या बी माइनस ए अब जेड में बिलोंग कर गया? अगर इंटीजर हुआ है बी माइनस ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा बी रिलेटेड है ए से, और यही शो करना था कि ये जो है हमारा आर में बिलोंग कर रहा है. देखिए, ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, अगर मेरा ए बी में बिलोंग कर रहा है, ए मतलब ए बी और ये रिलेटेड है, और बी सी से रिलेटेड है, तो शो करना है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. अभी मैं वो सब बात नहीं करता हूँ, लेकिन ए को सी से शो कराना है. ये दोनों गिवन है आपको.
ठीक है, चलो देखते हैं फिर ये वाला कैसे हो सकता है। बहुत इजी है ये भी। अगर मान लो बेटा जी a माइनस बी, इसका मतलब ये इंटीजर है ना, क्योंकि इसमें बिलोंग कर रहा है। और b माइनस सी, ये भी बेटा क्या, ये भी इंटीजर है। अगर आपको a कॉमा सी जो है रिलेशन होना चाहिए, तो उसके लिए a माइनस सी इंटीजर होना चाहिए, राइट। अगर मान लो वन इंटीजर है और माइनस टू इंटीजर है, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, क्या वो भी इंटीजर होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो वो भी इंटीजर होगा। और इससे आएगा क्या, ये देखो कट गया। तो मतलब a माइनस सी हमारे इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, और a माइनस सी बिलोंग कर रहा है, मतलब a रिलेटेड है c से, मतलब ये रिलेशन में लाई करते हैं। तो ये रिलेशन है एक। तो बस प्रूव हो गया हमारा। दिस वॉज आवर विच क्वेश्चन, दिस वॉज आवर 19th एग्जाम्पल। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड टू द 20th एग्जाम्पल ओवर हियर। कहता है कि ये एक फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है इंटीजर से इंटीजर में, राइट। लीनियर फंक्शन का हमने अभी अभी बताया, इक्वेशन ये होती है। ठीक है। कहता है ये सारे इसके ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो एफ एक्स फाइंड करना है, बहुत इजी है। देखो सारे पॉइंट्स डालते जाओ, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एम और सी की वैल्यू निकाल दो बस, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट होता है। अगर मैं एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन है तो वाई की वैल्यू वन है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू वन डालता हूँ तो वाई की वैल्यू भी क्या आती है, वन आती है ना, ये कुछ ऐसा कह सकते हैं। एक्स की जगह वन डालेंगे आएगा। और दूसरा ले लो, जीरो वाला ले लो तो इजी हो जाएगा, दूसरा और भी कोई ले सकते हो, राइट। तो अगर मान लो जीरो कॉमा माइनस वन लेते हैं, आप दूसरे से भी कर सकते हैं, ठीक है, फिर आपको एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन लगेगा, इजी हो जाएगा। अगर एक्स जीरो है तो वाई माइनस वन, अगर मैं एक्स जीरो डालता हूँ तो वाई माइनस वन, मतलब सी की वैल्यू जो आ गई सीधा के सीधा माइनस वन आ गई। और सी की वैल्यू अगर माइनस वन है, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एम की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टू। तो यहाँ पे अब बस वैल्यूज है इसकी दोनों की प्लग इन कर दो, तो वो ये हमारा जो होगा इसका फंक्शन होगा। क्योंकि इक्वेशन में हमें एम और सी की वैल्यू डालनी होती है, एक्स और वाई तो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये क्या होता है, स्लोप, ये क्या होता है, इंटरसेप्ट। हम बात करते हैं डोमेन की, डोमेन वाला क्वेश्चन है ये। जब भी एक रैशनल फंक्शन है पी बाई क्यू फॉर्म में, तो रैशनल फंक्शन में हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, इजंट इट। दिस कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। तो हम इसको पहले इक्वल टू जीरो करके वैल्यूज निकाल लेते हैं, कौन कौन सी वैल्यू इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती है फिर। तो मिड स्प्लिटिंग में अगर हम देखें, तो माइनस फोर एक्स माइनस वन एक्स इक्वल टू फोर, ग्रुपिंग करते हैं एक्स माइनस फोर माइनस वन कॉमन, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू फोर और वन, मतलब एक्स की वैल्यू फोर और वन नहीं हो सकती, क्योंकि उससे वो जीरो हो जाता है। बाकी सारे हो सकते हैं, मतलब डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन इसका होगा आर में से बस वन और फोर नहीं हो सकता है, बाकी सारा हो सकता है रियल नंबर। ठीक है। सो दैट वाज एग्जांपल नंबर 21। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल इस मिसलेनियस वाली वीडियो को हम दो पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है फंक्शन दिस, इसका ग्राफ बनाओ, तो बहुत इजी है फिर से। फंक्शन पहले डिफाइन कैसे वो देखते हैं। फंक्शन ऐसे डिफाइंड है कि वन माइनस एक्स, अगर एक्स नेगेटिव है, अगर एक्स जीरो है तो वन है अभी सीधा सीधा, और अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स प्लस वन है। अगर लेस देन जीरो है, तो आप लेस देन जीरो वाले पहले सारे पॉइंट्स डाल लो, मतलब इजी इजी। एक्स इक्वल टू माइनस वन डालो, एक्स इक्वल टू माइनस वन डालोगे तो एफ ऑफ माइनस वन कितना आ जाएगा, वन माइनस माइनस वन, टू आ जाएगा। ठीक है। आप फिर माइनस टू डाल लो, माइनस टू डालेंगे थ्री आ जाएगा, माइनस थ्री डाल लो, फोर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपने कुछ पॉइंट्स ले लिए। आप एक्स इक्वल टू जीरो पे तो आपको पता ही है वन है। अब एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए भी ले लो, अगर एक्स मेरा वन है तो ये वाला फंक्शन होता है ग्रेटर देन जीरो पे। तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा, टू। एफ ऑफ टू कितना हो जाएगा, थ्री। एफ ऑफ थ्री कितना हो जाएगा, फोर। राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। ठीक है, इसको प्लॉट एक तरीके से मॉडुलस जैसा बन रहा है, अगर आप देखेंगे। एक्स इक्वल टू जीरो पे वन है, तो ये यहाँ पे एक्स जीरो वन। एक्स इक्वल टू वन पे, अगर एक्स इक्वल टू वन पे ये वाई कहलाता है फंक्शन, तो वाई क्या है, टू। एक्स इक्वल टू वन पे अगर मैं वन लेता हूँ तो वाई टू यहाँ, और अगर टू लेता हूँ तो वाई थ्री यहाँ। तो ऐसा कुछ बन रहा है बेटा जी, देख सकते हैं। और अगर इधर की तरफ ऐसा है तो इधर की तरफ ऐसा बनेगा, क्योंकि मॉडुलस का दिख रहा है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, वैसे देख लीजिए पॉइंट से, माइनस वन है तो माइनस वन पे टू जा रहा है, जैसे ये जा रहा था। ठीक है। माइनस टू है, ये जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ का फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ बन गया हमारा ये। ठीक है, एज shown in the figure also. Let's move on to the exercise. These were the examples. Let's move on to the miscellaneous exercise then. कहता है हमारे पास दो रिलेशन है, इस तरीके से डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर एक्स जीरो से थ्री है,
और अगर 3 से 10 है तो ये लिया जाएगा, वही जैसे अभी बताया गया। तो शो करना है कि ये तो फंक्शन है लेकिन ये वाला फंक्शन नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन आपको याद है कि एवरी इमेज एलिमेंट हैज एन इमेज, लेकिन जो इमेज होगी वो यूनिक होनी चाहिए जो भी एलिमेंट की होगी, राइट। चलो देखते हैं पहला वाला, अगर मैं देखूं एफ एक्स, ठीक है बेटा जी। अगर पहला वाला देखें, अगर मान लो मैं जीरो डालता हूं तो जीरो वही आ रहा है ना। अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो पे क्या लेना है, एक्स स्क्वायर। अगर मैं वन डालता हूँ, अगर मैं वन डालूंगा तो वन का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में है ना, तो वन का स्क्वायर वन। अगर मैं बेटा टू डालता हूँ तो टू का स्क्वायर फोर। अगर मैं बेटा थ्री डालता हूँ, अब देखो दोनों फंक्शन पे ले सकते हैं। थ्री लिया क्योंकि ये भी इक्वल टू पे और ये भी इक्वल टू लगा हुआ है, तो एक्स अगर थ्री लेते हो तो ये वाई है फंक्शन जो है। तो थ्री का स्क्वायर नाइन और थ्री थ्री जा नाइन, तो इस पे क्या आ रहा है, नाइन ही आ रहा है। अगर आप देखेंगे सब में ऐसा, अगर आप डालते जाओ, फोर डालोगे, फोर के लिए ये वाला फंक्शन लिया जाएगा 12। सबकी एक इमेज आ रही है, और क्या है, सबकी एक यूनिक इमेज आ रही है, किसी की भी दो इमेज नहीं आ रही है। तो दैट्स वाई सिंस एवरी एलिमेंट हैज एन इमेज एंड दैट इमेज इज यूनिक, इसलिए हम बोल सकते हैं दैट्स वाई एफ इज अ फंक्शन। अब हमें शो करना है कि दूसरा वाला जी एक्स जो है वो फंक्शन नहीं है। जी एक्स, तो जी एक्स में अगर मैं आपको दिखाऊं सीधा के सीधा, देखो टू पे, इक्वल टू वाले पे अगर एक्स की वैल्यू टू डालता हूं तो यहाँ से टू का स्क्वायर फोर हो रहा है, और यहाँ पे थ्री टू से सिक्स हो रहा है, राइट। अगर मैं देखूं यहाँ पे, देखो बाकी सारे तो होंगे ही, जो भी होंगे उसको डॉट डॉट करके कर दिया। अगर मैं टू डालता हूँ फोर आ रहा है, टू डाल रहा हूँ तो सिक्स भी आ रहा है। अब एक ही एलिमेंट की दो दो इमेज, यूनिक नहीं रहा। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन नाउ। हियर हियर gx doesn't have unique image, दैट्स वाई, ये वाला रीजन की वजह से है ना, दैट्स वाई जी एक्स इज नॉट अ फंक्शन। तो अगर फंक्शन की डेफिनेशन याद होगी, सबसे पहले फंक्शन में ये होता था कि जो हमारा डोमेन है उसके ये जो ये होता है, ये सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, सारे कवर होने चाहिए। दूसरा, सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए, दो 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 इमेज नहीं होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, ये नहीं कि इसकी दो दो इमेज है, राइट, एक ही इमेज होनी चाहिए। सो दैट इज डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो भाई वैल्यू ऑफ फंक्शन पे है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एफ एक्स अगर मेरा एक्स स्क्वायर है तो ये निकालो। अगर मेरा एफ एक्स एक्स स्क्वायर है बेटा जी, तो ये वाली वैल्यूज निकालनी है, 1.1 माइनस एफ वन, 1.1 माइनस वन। 1.1 डालेंगे इसके अंदर तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। 0.1 ये हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर 1.21 होता है, माइनस वन। 0.1 तो 0.21 बाय 0.1 रहा, ये 10 हो जाएगा, ये 100 डेसिमल हटाया तो ये हो जाएगा बेटा 2.1। इसमें तो कोई गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम लोग। डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन ये सारे निपटा लेते हैं। ये चार क्वेश्चन है डोमेन रेंज वाले, ये कर लेते हैं। ओके, सो वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, चलो देखते हैं, एक दो और कर लेते हैं। कहता है डोमेन ऑफ दिस, बताया था अगर रैशनल फंक्शन होता है डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को इक्वल टू जीरो रख के देख लेंगे कौन सी वैल्यूज पे वो नहीं हो सकता है। अगर मैं इक्वल टू जीरो रखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या, यहाँ पे क्या बनेगा, 6x माइनस 2x बनेगा मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो एक्स एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा, एंड देन माइनस टू एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस सिक्स, दैट मीन्स आर के में टू और सिक्स के अलावा सारे हो सकते हैं डोमेन में, वरना वो डिनोमिनेटर जीरो बना देगा, राइट। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ठीक है, अगला वाला फोर्थ, कहता है डोमेन और रेंज निकालो। वाई मतलब एफ एक्स जो है रूट एक्स माइनस वन है, ठीक है, रूट एक्स माइनस वन। डोमेन के लिए अगर आपको पता हो कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मतलब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो सकती है, मतलब एक्स जो है वन से लेके इन्फिनिटी तक जा सकता है, ये डोमेन है, ये डोमेन है। रेंज क्या होगी, अगर मैं एक्स में एक्स की वैल्यू वन डाल दूं तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, राइट। नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप वन डालेंगे फिर टू डालेंगे वन आ जाएगा, रूट वन वन होता है। मतलब कि जीरो आ सकता है, और जीरो से लेके इन्फिनिटी तक हमारी रेंज हो जाएगी। और अगर आपको ऐसे समझने नहीं आता है बेटा जी, तो आप इसका ग्राफ बना लो। आपको मैंने वाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बताया था कि वो ऐसे जाता है बेटा जी, ठीक है। लेकिन जब आपके पास ग्राफ इसका पूछा जा रहा है, वाई इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन का, थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाएगी। कैसे, एक्स माइनस वन को अंदर वाले को जीरो रखो, वन रखो, तो मतलब कि वो अब यहां से नहीं यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे y को जीरो रख रहा हूँ, y जीरो, ये y तो जीरो हो गया।
अगर मैं y को 0 रखता हूँ x 1 होता है, मतलब 1,0, यहाँ पे वर्टेक्स है, तो ये ऐसे जा रहा है क्योंकि रूट वाला हमेशा ऐसे जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो डोमेन क्या है, 1 से लेके ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली देखें। और अगर आप वर्टिकली देखें तो ये वाली लाइन जो होती है, ये वाली लाइन किसकी होती है, y = 0 की। और फिर यहाँ से ऊपर है, ऊपर की तरफ है ग्राफ, ये चलता जा रहा है ऐसे ऊपर। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। तो भाई ग्राफ से भी समझा दिया मैंने, ठीक है। चले तो भाई अभी क्या करते हैं, ये वाला और कर लेते हैं एक और, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो मॉडुलस वाला भी आ गया फिर से। मॉडुलस वाला ग्राफ से ही देख लो, जैसे अभी ग्राफ लेके बताया। मॉडुलस वाले में अब ग्राफ अगर मैं बताया तो y = mod x का ग्राफ बेटा जी ये होता था, v। अगर मॉड x-1 है तो उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ की तरफ हो जाएगा। ये एग्जाम में अगर आप ग्राफ से कर रहे हैं तो ग्राफ बनाइए, ठीक है, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। अगर अब आप डोमेन की बात करें, डोमेन जो होता है -इन्फिनिटी इन्फिनिटी सारी वैल्यूज हैं, देखो ये सारी वैल्यूज हो रही है हॉरिजॉन्टल, ऐसे लाइन बना के देख लो, क्या सारी वैल्यूज पे कवर कर रहा है, हाँ इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे, कर रहा है। तो डोमेन हो जाएगा हमारा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन रेंज की बात करें तो ऊपर की तरफ है बस, और ये इंक्लूडेड भी है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम जो यहां तक हमने फिफ्थ तक कर लिया, नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस यहां से हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन।